Hello students, today we will start with the second chapter, that is physical and chemical changes. You have already done this chapter in class 7, so you know much about what is a physical and chemical change. So first we'll have a slight revision and then we'll go ahead with the topic. So first of all, we'll see that what is the introduction of this chapter. There are many changes you see across uh, and it is a universal phenomenon. Most of the substances undergo change, okay? There are changes which you can see and which you can make out, but some changes they are very difficult to identify. You cannot even predict that some change has happened. They are so slow. So some examples of changes are day and night, seasons, then growth of plants and animals, ripening of fruits, burning of fuel, etc. All these changes are there which you mostly see around yourself. Now the changes can be natural and man-made. Okay, that means some changes are brought about by nature which are not brought about man, but some changes are there which are man-made. Some changes are desirable and some are undesirable. That means for some changes we like them to happen. For example, when milk turns into curd, it is a desirable change. But souring of milk, when milk gets spoiled, that is undesirable change. Changes may be small and large, reversible and irreversible, temporary and permanent. This we will understand in the due course of the chapter when we'll study further. So every change which happens has a reason behind it. There is no change which does not have a reason. Okay. Now we'll study about the first category, that is slow and fast change. What is a slow change? The change that takes longer time to complete. That means, suppose if I burn a piece of paper, it burns in a jiffy, okay, एकदम से burn हो जाता है एकदम जल्दी से. तो वो कैसा change होगा? वो fast change होगा क्योंकि उसको बहुत कम time लगा था, because time taken is very small. Time taken is, the duration is very small. So we say this, it is a fast change. But imagine rusting of iron. It does not rust in a day or two. Okay, so it takes a long time to rust. So rusting of iron is a slow change because it may take some hours, some days, some months, or even years also. Change of seasons, change of season also takes much time. Formation of curd from milk, hours it takes. 4-5 hours में जो milk है वो curd में change होता है. A child growing into an adult takes years. Okay, then formation of fossil fuel. Now what is fossil fuel? The fuel which is formed by the dead and decayed plant and animal matter, which is buried inside the earth for millions of years, and then it converts into fuel. Example of fossil fuel: coal, petrol. These are fossil fuels. Okay, it takes millions and thousands of years to make these fuel. Okay, some changes, as I've given you the example of burning of paper, it is a fast change. It takes place in a very short interval of time. बहुत जल्दी से हो जाता है, तो it is a fast change. Example: bursting of cracker, lightning of electric bulb. As soon as you put the switch on, जैसे switch on किया आपने, bulb on हो गया, तो it's the fast change. Fan on किया, एकदम से on हो गया. Blinking of eye, cutting of an apple, etc. are uh, fast changes. Then comes natural and man-made changes. As I told you, some changes are natural. That means they are brought about by nature. But some changes are man-made. Now we'll see the example of natural changes. What are natural changes? The changes that takes place in nature by themselves are called natural change. ऐसे change जो nature में अपने आप हो जाते हैं उनको हम natural change कहते हैं. जैसे कि आपका ये है change of day and night, change of day and night, growing of trees, earthquake, volcanic eruptions. These are natural changes because they are brought about by nature. Then man-made changes, जो हम बनाते हैं, हम करते हैं, man करता है, तो वो क्या है? Cooking of food, formation of steel from iron, brass from copper and zinc, jewelry from gold, etc.
ये चेंजेस हम करते हैं, गोल्ड से ज्वेलरी हम बनाते हैं, तो ये जो चेंजेस हैं मैन मेड है. एक कुकिंग ऑफ फूड, ज्वेलरी फ्रॉम गोल्ड, दीज आर मैन मेड चेंजेस. नाउ सम आर पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस. जो चेंजेस रिपीट होते हैं एक रेगुलर टाइम पे, मतलब एक रेगुलर इंटरवल पे, कि अभी 6 महीने बाद होगा ऐसा, या 24 घंटे बाद ऐसा होगा, आफ्टर 24 hours दिस विल टेक प्लेस, आफ्टर 6 months, आफ्टर 1 year, मीन्स यू हैव अ फिक्स्ड time that after this much of time this change will take place. That is a periodic change. For example, change of day and night. Day and night, you all know how it changes. In 24 hours it changes from day, it one cycle of day and one cycle of night takes place. Change of seasons, 4 seasons are there, so approximately after every few months it changes, few months the season changes, and you are aware of it that after this season this will come, after this will come, so it is a periodic change. Now some changes they are not repeated at regular interval, they are called as non periodic changes. क्यों? क्योंकि वो कभी भी हो जाते हैं. They can occur at any time without any prior information. कोई information नहीं है, अचानक से कोई change हो गया तो उस change को बोलते हैं non periodic. Non periodic changes कौन से हैं? Earthquake, लैंडस्लाइड, एपिडेमिक, जैसे भी ये कोरोना चल रहा है ना, तो अब अचानक से आ गया, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, कुछ पता भी नहीं है अभी कब तक रहेगा, तो इस तरीके से एपिडेमिक भी नॉन पीरियोडिक चेंज है. पर्सन बिकमिंग सिक, अचानक से बीमार पड़ गया ना, ऐसा नहीं था उसको पता था कि मैं 3 दिन बाद बीमार पड़ूंगा, कि अब मैं 4 दिन बाद बीमार पड़ूंगा, या मैं हर महीने बीमार पड़ता हूँ इस तारीख को, तो द पर्सन बिकम सिक, वो भी आपका कैसा है? नॉन पीरियोडिक चेंज है, बिकॉज इट कैन अकर एट एनी टाइम. The next category is reversible and irreversible changes. Very important in chemistry because कुछ आप reactions देखेंगे जो कि reversible reactions होंगे, तो हमें पता चलना चाहिए what is reversible and irreversible changes. Suppose a substance changes from one form to another, okay? But after some time when you change the conditions, जिस condition पे आपने change किया था उसको आपने उल्टा कर दिया, हटा दिया या वापस से कर दिया, उल्टा कर दिया, तो क्या होगा? वो चेंज जो था वो हट जाएगा और वो कंडीशन पुरानी कंडीशन में आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई कीप द वाटर इन फ्रीजर, इट विल टर्न बैक इनटू सॉलिड सब्सटेंस, दैट इज आइस. लेकिन अगर उस आइस को मैं निकाल के बाहर रख दूं नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो क्या होगा? दैट आइस विल अगेन कन्वर्ट बैक इनटू water. This means that it is a reversible change. It can be brought back again to the original condition. Okay. So when a change in a substance can be reversed, ये आपकी definition हो जाएगी. जब आप किसी भी change को reverse कर लेते हैं by changing the condition, it is said to be reversible change. Example, water freezing into ice and then ice melting into water. और ये होता है reversible का साइन. इस तरीके से देखेंगे, हाफ एरो, ये रिवर्सिबल का साइन है. तो जहां रिएक्शंस में आप बीच में एरो लगाते हैं ना, गिव्स की जगह, रिवर्सिबल रिएक्शन में ये इस तरीके का एरो लगता है और ये शो करता है कि जो रिएक्शन है वो कैसी है? रिवर्सिबल है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज इररिवर्सिबल. उसकी डेफिनेशन ये है कि इफ अ सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रॉट बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट आफ्टर अ चेंज, इट इज सेड टू बी एन इररिवर्सिबल चेंज. वो इररिवर्सिबल चेंज हो जाता है. अब एग्जाम्पल देखेंगे इररिवर्सिबल चेंज का. तो इररिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल है बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर इनटू ऐश. अब उस ऐश को आप दोबारा से ठंडा करके पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो कैसा चेंज है? ये इररिवर्सिबल है. कुकिंग ऑफ फूड, once the food is cooked, you cannot bring back it into the original state. Suppose you have cooked rice and dal, तो आप उसको वापस से रॉ मटेरियल रॉ राइस में और रॉ पल्स में नहीं ला सकते हैं. फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, कर्ड अगर बन जाता है मिल्क से, तो आप उस कर्ड को वापस से मिल्क नहीं बना सकते हैं. सो दीज आर इररिवर्सिबल चेंजेस. नाउ एक्टिविटी 1 यू विल डू इन योर कॉपी. आपको 2 एग्जाम्पल लिखने हैं, पीरियोडिक के, रिवर्सिबल के, स्लो के, नॉन पीरियोडिक, इररिवर्सिबल एंड फास्ट. तो अब ये तो सारी ब्रॉडर कैटेगरी आ जाती है हमारी. ये सारे जितने भी चेंजेस हमने पढ़े हैं, तो ऑल द पॉसिबल चेंजेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज. मेन जो 2 कैटेगरीज ब्रॉड कैटेगरीज हैं उन पे हम इसको रखेंगे. और वो ब्रॉड कैटेगरीज क्या है? फिजिकल एंड केमिकल changes. So what are physical and what are chemical changes? We will see now. Physical change क्या है? Physical change में
जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको याद रखनी पड़ेंगी आगे चल के कि फिजिकल चेंज में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज अ फिजिकल चेंज? इट इज द चेंज इन विच अ सब्सटेंस ऑल्टर्स टेम्परली। तो कीवर्ड क्या है? टेम्पररी चेंज होता है। और सिर्फ उसकी क्या चेंज होती है? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। नेमली स्टेट, शेप, साइज, अपीयरेंस, दैट इज कलर एक्सेट्रा। सिर्फ ये चेंज होता है, ठीक है। उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होती उसकी। जिसके अंदर जैसे वाटर है, वाटर में अगर आप उसको आइस में कन्वर्ट कर दें या स्टीम में कन्वर्ट कर दें, लेकिन उसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो H2O ही है। हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन के एटम्स और एक ऑक्सीजन का एटम, ये उसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, इट डज नॉट चेंजेस। although its appearance has changed, its state has changed, but it is a physical change, not a chemical change. तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी फिजिकल चेंजेस की? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है no new substances formed. Okay, it only changes its shape, size and appearance, but the new substances not formed. I've given you the example of ice. They are giving you the example of ice only. The chemical composition, that is the formula H2O, remains the same of ice also and of liquid water also. Second is the change is temporary and reversible. Physical change is temporary and reversible. That means it can come back to its original state on changing the condition. Again that ice वाला जो example है वो आप ध्यान में रखेंगे कि ice को आप दोबारा से liquid उसमें ले आ सकते हैं by changing the conditions. Okay, so क्या होता है ये कि जो state है हमारी वो जो रिवर्सिबल है, चेंज रिवर्सिबल है और चेंज कैसा है? टेम्पररी. द चेंज इज टेम्पररी एंड द चेंज इज रिवर्सिबल. ओके, लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे हैं ना जो आप मतलब रिवर्सिबल नहीं है. ऑल्दो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म बट स्टिल द चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स. फॉर एग्जांपल इफ यू टेयर अ पेपर इनटू स्मॉलर बिट्स, तो ऑल्दो वो दिखने में तो पहले पेपर जैसा नहीं है, लेकिन वो हर एक स्मॉल पीस जो है वो बिल्कुल पेपर की तरह ही, उसको देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये पेपर का पीस है. ओके, प्लकिंग ऑफ फ्लावर, आपने फ्लावर को प्लक कर दिया तो ऑल्दो जो फ्लावर है वो प्लक हो गया वहां से, अब उसको आप वापस नहीं जोड़ सकते, रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन कोई नई चीज नहीं बनती है. फ्लावर अपना जो भी पहले था वही बाद में है. चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल्स, आपने वेजिटेबल्स को काट के छोटा छोटा कर दिया, उसका साइज जरूर चेंज कर दिया, बट आफ्टर सीइंग द स्मॉल पीसेस यू कैन आइडेंटिफाई ओके दिस इज दिस वेजिटेबल, और उसकी जो कंडीशंस हैं, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे रिमेन द सेम. तो समटाइम्स दे आर इरिवर्सिबल, बट इरिवर्सिबल इन द physical sense. Okay, because no new substance is formed. No change in mass during a physical change. मास में चेंज नहीं होता है. ओके, द अमाउंट ऑफ मैटर रिमेन्स द सेम. मतलब जब भी फिजिकल चेंज होगा तो अमाउंट ऑफ मैटर रिमेन्स द सेम. फॉर एग्जाम्पल, एक आपने बीकर लिया, उसमें कुछ सॉलिड वैक्स ले ली, उसको वे कर लिया बीम बैलेंस पे. नाउ मेल्ट द वैक्स एंड वे अगेन. what will you observe? That the two weights are same. Why? Because it is only a physical change. मेल्ट हो गया, अभी इसको ठंडा कर देंगे तो फिर से सॉलिडिफाई हो जाएगा, गर्म कर देंगे तो मेल्ट हो जाएगा, बट जो अमाउंट ऑफ मैटर है, मास है, इट रिमेन्स द सेम एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज. नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज. कोई एनर्जी में गेन और लॉस नहीं होता है. Water changes into steam by absorbing a certain amount of heat. The same amount of energy is given out when steam changes back into water by giving up its heat. इसका ये मतलब है कि जब भी जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, नेट एनर्जी का गेन और लॉस है, इट रिमेन्स द सेम. अब एग्जाम्पल देखेंगे. यहाँ पे वाटर है आपका लिक्विड स्टेट में. ओके, यहाँ पे वाटर है, ये है आपका लिक्विड स्टेट में. अब आपको इस लिक्विड स्टेट को किस में चेंज करना है? गैसियस स्टेट में, गैस में चेंज करना है, वेपर स्टेट में चेंज करना है. तो आप क्या करते हैं? उसको एनर्जी देते हैं. यू गिव दिस वाटर एनर्जी. आफ्टर टेकिंग द एनर्जी दिस H2O चेंजेस इनटू गैस, वेपर में आ जाता है. दैट इज वाटर वेपर. अब इस वाटर वेपर में क्या है? वो एनर्जी है जिसको लेके वो आया है, यहाँ पे चेंज हुआ है. सपोज आई वांट टू ब्रिंग बैक अगेन दिस वाटर इनटू
लिक्विड वाटर। अब मुझे इस वाटर को जो वेपर है उसको वापस से लिक्विड में लाना है, तो जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी है वही एनर्जी इसको रिलीज करनी पड़ेगी, तभी ये वापस आएगा। तो यहाँ पे सपोज कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी है x, तो यहाँ पे भी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी सपोज y, तो x इज इक्वल टू y, दैट मीन्स टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। there is no net gain or loss of energy as a result of physical change। तो कंडेंसेशन जब होगा, वाटर वेपर विल अंडरगो कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन में क्या होता है कि वो लॉस ऑफ एनर्जी जो उसने यहाँ पे गेन करी थी एनर्जी, यहाँ पे वो लॉस करके वापस से उसी फॉर्म में आ जाए। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको याद करनी है। तो कौन कौन से पॉइंट्स थे? सबसे पहला पॉइंट था नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, there is no change in the chemical composition of the original substance, then the change is temporary and it can be reversed by reversing the condition। सिर्फ स्टेट और साइज शेप एंड कलर में चेंज हो रहा है, स्मेल एंड ऑल, इट ओनली फिजिकल चेंज इज देयर। नो चेंज इन द मास ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन अ फिजिकल चेंज, ओके, एंड नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी फिजिकल चेंजेस की। एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं, एक बार पूरा पढ़ लेंगे उसको। फॉर्मेशन ऑफ ड्यू, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, आइस, सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन, कैम्फर, magnetization of iron, breaking of glass, drying of wet cloth, crystallization of salt or sugar, dissolution means dissolving of sugar in water, glowing of an electric bulb, formation of vapor। ये सब एग्जाम्पल्स हैं आपके फिजिकल चेंज के, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे जब ये वैक्स है, जब ये यहाँ पे जो वैक्स है ये हीट से मेल्ट हो रही है तो ये क्या हो रही है, नीचे जा रही है। यहाँ पे ठंडा हो रहा है तो यहाँ पे ये सॉलिड बन जा रही है। तो ये कैसा एग्जाम्पल है? ये फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि जो वैक्स है, मोल्टन वैक्स, वो सॉलिड वैक्स, चाहे मोल्टन वैक्स हो चाहे सॉलिड वैक्स हो, दोनों का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो सेम होता है। तो दिस इज अ फिजिकल चेंज। ये भी डायग्राम है जो आपको कॉपी में अपनी बनाना है। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ आइस, सॉलिड आइस को हीट करेंगे तो लिक्विड वाटर बन जाएगा, लिक्विड वाटर को हीट करेंगे तो वाटर वेपर बन जाएगा। फिर यही वाटर कूल हो जाएगा, मतलब अपनी एनर्जी रिलीज कर देगा जो उसने यहाँ पे गेन करी है। यहाँ पे जो एनर्जी इसने गेन करी थी वो एनर्जी यहाँ पे क्या करेगा, रिलीज कर देगा, कूल हो जाएगा, लिक्विड वाटर में आ जाएगा, और कूल करेंगे तो किस में आ जाएगा, सॉलिड। तो एक तरह से साइकिल फॉर्मेशन है, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, अगेन इट कैन बी फ्रोजन। तो इस तरीके से दिस इज साइक्लिक। अभी एक्टिविटी देखेंगे। क्या है एक्टिविटी 2? एक कैरेट लिया है आपने, उसको छोटे छोटे पीसेस में काट दिया है। तो जब उसको छोटे छोटे पीसेस में आपने काटा है तो ये जो स्मॉल स्मॉल पीस ऑफ कैरेट है, इसको भी देख के या खा के या इसकी स्मेल से आप पता लगा सकते हैं कि ये कैरेट का ही पीस है, ओके। दैट मीन्स नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। सो इज द चेंज टेम्परेरी? टेम्परेरी का क्या मतलब है यहाँ पे? इसको वापस से आप रिवर्स बैक कर सकते हैं या नहीं करेंगे? तो चेंज टेम्परेरी है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपने इसको कट कर दिया है। रिवर्सिबल है? यहाँ पे नहीं है, रिवर्सिबल नहीं है क्योंकि उसको वापस से आप जोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, कैसा है ये? फिजिकल चेंज। एंड व्हाई इट इज अ फिजिकल चेंज? बिकॉज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। अब ये जो डेफिनेशंस हैं दोनों, इन डेफिनेशंस को आपको याद करना है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। कीवर्ड्स आपको पता ही है, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, chemical composition is the chemical composition remains the same, okay, and only change in color, state, size and shape। first point, second point and third point इस definition में आएगा। फिर chemical change में permanent word आएगा first point, यहाँ पे आप temporary word ऊपर वाले में यूज कर सकते हैं, physical वाले में new substance is formed, okay, और केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है ओरिजिनल सब्सटेंस से। तो दिस इज द थर्ड पॉइंट, ओके। सो दिस वे यू विल लर्न द डेफिनेशन। फिर से रिपीट हो रही है यहाँ पे, केमिकल चेंज क्या होता है? क्योंकि केमिकल चेंज में एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंस जिनकी बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट कॉम्पोजिशन, इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो कि ओरिजिनल सब्सटेंस से थी वो बनती है। क्या कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल चेंजेस की? अगेन न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। केमिकल चेंज है तो नया सब्सटेंस बन जाएगा, फिजिकल चेंज में
नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया है आपको, इन्होंने क्या बोला है आपको, कुछ आयरन पाउडर लेना है आपको और एक सल्फर लेना है, ठीक है, और उनको हीट करना है। तो इस तरीके से नया कंपाउंड बन रहा है, उसका एग्जाम्पल देखते हैं आप। इन्होंने आयरन लिया, ठीक है, आयरन, और इन्होंने सल्फर लिया। आयरन किस कलर का है? ब्लैक कलर का, ओके, ब्लैक कलर का है आयरन, ग्रे मान लीजिए, ग्रे कलर का है आयरन। और जो सल्फर है वो आपका येलो कलर का है, येलो कलर का सल्फर है आपका। अब आपने क्या किया, पहले तो आपने इनको अलग अलग टेस्ट किया। कैसे अलग अलग टेस्ट किया? आपने आयरन को टेस्ट किया मैग्नेट से, आयरन का जो टेस्ट है वो है मैग्नेट से, बिकॉज इट गेट्स अट्रैक्टेड विथ मैग्नेट। और जो सल्फर है उसका टेस्ट ये है कि वो एक कार्बन डाइसल्फाइड नाम के लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है, ओके, कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल है। तो ये दोनों उनके टेस्ट थे। अब इन्होंने क्या किया, एक क्रूसिबल लिया और उसमें आयरन और सल्फर को मिक्स कर दिया, ठीक है, आयरन को और सल्फर को इन्होंने मिक्स कर दिया। तो सम पार्ट्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट हियर एंड सम पार्ट ऑफ आयरन आर प्रेजेंट हियर। इस तरीके से इन्होंने क्रूसिबल में उसको डाल दिया। अब क्या हुआ, जब ये क्रूसिबल में इन्होंने डाला और उसको चम्मच से मिक्स कर दिया, ठीक है, मिक्स हो गया, ये दोनों पाउडर फॉर्म में है, दोनों अपने पाउडर फॉर्म में है, आयरन भी अपने पाउडर फॉर्म में है और सल्फर भी अपने पाउडर फॉर्म में है, मिक्स कर दिया। अब इन्होंने इसके ऊपर मैग्नेट टेस्ट किया। जैसे ही इन्होंने मैग्नेट इसके ऊपर लाया तो जितने भी ब्लैक पीसेस थे आयरन के वो सब मैग्नेट से अट्रैक्ट हो गए, ठीक है, वापस से डाल दिया उसी में आयरन पीसेस को। फिर इस पूरे सॉल्यूशन को उठा के कार्बन डाइसल्फाइड में डाला तो जो सल्फर था वो डिसॉल्व हो गया। इसका मतलब कि इस टाइम पे ये किस फॉर्म पे है, ये अभी फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि दोनों ही चीजों ने अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन किया हुआ है, ओके, दोनों ही ने ही अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन किया हुआ है, दोनों अपने अपने काम जो थे उनके कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ, अब हमने इस पूरे मिक्सचर को लिया और इस पूरे मिक्सचर को हीट कर दिया, हीट कर दिया, ओके, हीट कर दिया। जैसे ही इस मिक्सचर को हमने हीट किया तो एक पूरा ओवरऑल ब्लैक कलर का मास बन गया यहाँ पे, ओके, ब्लैक कलर का एक मास बन गया, ओके, हीट करने के बाद। अब इस ब्लैक कलर के मास के ऊपर जैसे ही हम मैग्नेट लाए तो क्या हुआ, ये अट्रैक्ट ही नहीं हुआ मैग्नेट से। फिर इस ब्लैक मास को हमने जब कार्बन डाइसल्फाइड में डाला तो भी वो डिसॉल्व नहीं हुआ, नॉट डिसॉल्व्ड, डिसॉल्व नहीं हुआ कार्बन डाइसल्फाइड में। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब कि ये जो ब्लैक मास बना है आपका, इसकी प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट है, किससे, आयरन से और सल्फर से, और होंगी भी, क्योंकि जैसे ही आपने इसको हीट किया क्या चेंज हो गया, एक केमिकल चेंज हुआ और नया सब्सटेंस बन गया आयरन सल्फाइड। तो ये जो ब्लैक मास है ये क्या है, ये है आयरन सल्फाइड। तो इसीलिए उसमें ना तो आयरन की प्रॉपर्टी है ना सल्फर की प्रॉपर्टी है। गॉट इट? सो दिस इज नोन एज केमिकल चेंज। परमानेंट है, इरिवर्सिबल है, ठीक है, जैसे एक पीस ऑफ पेपर को हमने बर्न किया और ऐश बन गया तो कैसा चेंज है, ये चेंज है परमानेंट, परमानेंटली वो वैसे इस फॉर्म में चला गया, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आप ना, ये ऐश बन गई है, इस ऐश को आप वापस से रिवर्स बैक करके पेपर नहीं बना सकते। और इसकी जो प्रॉपर्टी है इसकी, वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है, एकदम अलग है। क्यों? क्योंकि केमिकल चेंज हो गया है। बर्निंग ऑफ वुड इज ऑल्सो केमिकल चेंज। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, जो बर्निंग है, कंबशन है, इट इज अ केमिकल चेंज बिकॉज न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि आपको एक शुगर का कुछ पीस लेने हैं और उसको तवे पे डाल के उसको थोड़ा हीट कर लेना है, इट विल टर्न बैक इनटू अ ब्लैक सॉलिड मास एंड विच इज, उसको आप टेस्ट करेंगे तो इट इज नॉट स्वीट बिकॉज वो क्या फॉर्मेशन हो गई है, वो चारकोल की फॉर्मेशन हो गई है, केमिकल चेंज हो गया है, इट इज नॉट शुगर। उसका कलर भी चेंज हो गया, ब्लैक, व्हाइट से ब्लैक, और उसका जो टेस्ट था वो भी चेंज हो गया बिकॉज दिस इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। There is usually a change in the mass of the original substance. अब इन्होंने क्या बोल रहे हैं ये, कि जनरली क्या होता है कि सपोज किसी भी चीज में अगर आपके पास कोई गैशियस चीजें प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल जब आप वुड बर्न करते हैं
तो वुड के अंदर कुछ गैसेस प्रेजेंट है ना, गैशियस एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो जब आप वुड को बर्न करेंगे ना, तो वो क्या करेंगे, वो ऊपर चले जाएंगे। और इसीलिए जब आप कितनी भी ज्यादा क्वांटिटी में आप लकड़ी जलाएंगे, उसकी जो ऐश होती है वो उतनी क्वांटिटी में नहीं होती, वो थोड़ी होती है ना। इसीलिए होती है क्योंकि बहुत सारा मटेरियल जो है वो हवा में चला गया है, उड़ गया है, आपने गैशियस फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो इसी चक्कर में जब भी केमिकल चेंज होगा, तो जो गैशियस एलिमेंट्स हैं दे विल लीव दैट particular mass, and you will see that there is the thing which is left after burning or after a chemical change is little less. अब इन्होंने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया है, इन्होंने मैग्नीशियम लिया है और मैग्नीशियम को इस क्रूसिबल में डाल दिया। ये मैग्नीशियम है, ऊपर की लिड बंद है, लेकिन बीच बीच में थोड़ी थोड़ी लिड खोल रहे हैं सो दैट ऑक्सीजन में गेट इनसाइड, फॉर ऑक्सीजन टू गो इनसाइड। एंड देन व्हाट इज हैपनिंग, पहले इन्होंने क्रूसिबल में मैग्नीशियम डाल के बिना हीट किए उसको वे कर लिया, बाद में मैग्नीशियम को हीट कर दिया, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा लिड खोलते रहे। एंड आफ्टर दैट जब इन्होंने इसको वो करा, वे करा, तो ये ज्यादा निकला। ओके, ये जो मास था ये ज्यादा निकला, क्योंकि अब यहाँ पे क्या बन गया है, यहाँ पे एक नया सब्सटेंस बन गया है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बिकॉज दिस मैग्नीशियम हैज reacted with oxygen to give magnesium oxide। तो जो ऑक्सीजन ऊपर एटमॉस्फेयर में से आई वो इसमें ऐड हो गई है, तो गेन हो गया है मास में, और अगर इसमें से ही निकल जाती है ऑक्सीजन तो लॉस हो जाता मास में। ठीक है, समझ में आ गया। तो जनरली गेन और लॉस हो जाता है केमिकल चेंज में। फिर आ जाता है, लेकिन अगर हम इसको मेजर कर लें कि हमने कितनी ऑक्सीजन आई है इस रिएक्शन में, ऐड हुई है, तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर आ जाता है। वो मैं आगे समझाऊंगी जब वो आएगा पॉइंट आपके लिए, अभी उससे इसको कंफ्यूजन नहीं होना है, बस इतना समझ लेना है कि फिजिकली देखने में आपको मास या तो ज्यादा लगेगा या कम लगेगा। ओके, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। जो फिजिकल चेंज की प्रॉपर्टीज थी उससे बिल्कुल उल्टी। जब वुड और पेपर बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ये देखो दो गैशियस प्रोडक्ट्स हैं जो चले जाते हैं एटमॉस्फेयर में, इसीलिए मास कम लगता है। ओके, तो इसलिए ये जो है जैसे ही ये रिलीज होते हैं, जो बर्न होती है, तो एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। तो एनर्जी चेंज जरूर होता है केमिकल उसमें। अब एक बार रिवाइज कर लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक क्या है केमिकल चेंजेस की। न्यू सब्सटेंस ओरिजिनल सब्सटेंस से बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल ऑपोजिट। चेंज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। There is a change in the mass, exchange of energy takes place. Examples देख लेंगे chemical change के, cooking of rice, formation of curd from milk, digestion of food, formation of salt from acid and base. ये जब हम आगे पढ़ेंगे reaction, then I'll explain it. Burning of fuel, liberation of gases, rotting of eggs, rusting of iron are some example of chemical changes. कौन सा ऐसा चेंज है जो दोनों ही है, जो फिजिकल भी है और केमिकल भी है, साइमल्टेनियसली उसमें साथ के साथ होते हैं ये चेंजेस? तो ये वाला है आपका बर्निंग ऑफ कैंडल इज एन एग्जांपल इन विच बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। जब कैंडल को आप लाइट करते हैं तो सॉलिड वैक्स थोड़ा सा मेल्ट होता है और लिक्विड में टर्न होता है, और फिर ऊपर की तरफ फ्लेम में से जल के उसमें से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, वो निकल जाते हैं। ओके, और लाइट और हीट निकलती है इसमें से, तो ये केमिकल चेंज हो गया। लेकिन जो मोल्टन वैक्स है वो ड्रॉप हो रही है नीचे और सॉलिडिफाई हो रही है, ये एक फिजिकल चेंज है। तो मेल्टिंग ऑफ कैंडल याद रखेंगे इसमें, मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स इज अ फिजिकल चेंज एंड बर्निंग ऑफ कैंडल टू प्रोड्यूस CO2 and H2O इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, अब एक लाइटेड बल्ब लिया इन्होंने, एक इन्फ्लेटेड बलून लाइटेड बल्ब के पास लेके आए हैं, और क्या होता है, गर्मी की वजह से ये बलून जो है कैसा होता है, एकदम से जो है डिफ्लेट हो जाता है। तो ये जो बर्स्ट हो जाता है बलून, ये जो बर्स्टिंग ऑफ बलून है, ये क्या है, जो अंदर की एयर थी वो हॉट हो गई, और हॉट होने के बाद काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, पार्टिकल एकदम और दूर दूर जाने लगे, और उनका जो ऑक्यूपाई किया था स्पेस उसमें फैलने लगे, इंक्रीज करने लगे, और जो इनर वॉल थी बलून को, उस पर प्रेशर लगाया उन्होंने, और जो बलून था वो बर्स्ट हो गया। ओके, तो इट इज अ फिजिकल चेंज। और याद रखना काइनेटिक एनर्जी
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। जितनी हीट दोगे काइनेटिक एनर्जी उतनी बढ़ेगी। ओके, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, उसकी वजह से हीट की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, पार्टिकल्स दूर दूर जाने लगे और उन्होंने बलून को बर्स्ट कर दिया। फिर ये आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ये आपको याद करने हैं। ओके, कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। इसमें अपने जो कीवर्ड्स हैं, जैसे इसमें परमानेंट है, इसमें रिवर्सिबल है, टेम्पररी है ना, ये सब जो है इसमें कीवर्ड्स करके आप ये क्वेश्चन आंसर याद कर सकते हैं।